So, Amit, welcome to this fifth episode of Retail Talks, what we call uh, In Conversation with. So, and we have been discussing a few different segments, and today we are very fortunate to have you here. And to just for the information, me and Amit go a long way back. And once upon a time, but I was consultant for Shakti Pumps at Gujarat. Correct. So I had the chance of working with this, well, at that time, a young and dynamic MBA. And I have seen him growing with the different companies. And currently, he is heading all the operations of the vertical of motors and pumps at Madhya Pradesh for Havells. Again, needless to say, Havells is one of the most, I would say, highly rated brands as of now in India. So that's about Amit. So, Amit, a formal welcome again. And so, tell us something about your journey, right from Uh, your MBA and onwards. Thank you so much, Siddharthji. And first of all, thank you so much for giving such opportunity in such platform. And as rightly said from your side, it was a quite short period in between we have worked together, but it was quite good, and we have learned many things from your side. So I went from my previous starting journey of Shakti Pumps. So, friends, myself Amit Jain, I belongs to one of a small district from MP. It's called Chhatarpur, and I did schooling from there only. Then I came to Indore, and I did MBA from Indore itself, and I got opportunity in Shakti Pumps India Limited in Gujarat region, and I started my career over there. Then I moved on. Then after Shakti Pumps, I have joined one of German MNC company, Northern Virgin India Limited, and worked as a state head of different kind of operation in power tool industry. Then I moved MP in other company, and after that, after some time, I have joined Havells India Limited, and I'm working in Havells as seventh year. It's my seventh year. I'm completing just one after 1 month. So it was quite learning in last 10 to 12 years in my professional career, and I learned many things which I gained in many parts in terms of professional, in terms of personal, and I also met many people just like Siddharthji. I have met Siddharthji also. So then, in very short Your voice is cracking, Amit. डीपली अगर मैं जाऊं इस चीज को, तो काफी लर्निंग की। और आज की टाइम में बिना मतलब अपने आप को अपडेट करे या लर्निंग करे किसी भी हम मुकाम तक नहीं पहुंच सकते। तो ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस रहा अभी तक का इन कंपनीज का, वो काफी अच्छा रहा। हमें काफी अच्छे लोग मिले, और मैं काफी अच्छे लोगों से क्वाइट फॉर्चुनेट था कि मैं सराउंडेड अच्छे लोगों से सराउंडेड था, तो सीखने को भी काफी कुछ मिला। तो ये ओवरऑल एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और मैं यही कहूंगा कि अच्छे लोग हमेशा आपके पास आसपास होने चाहिए। So, Amit, yes, I still remember वो अहमदाबाद के दिन मुझे अभी भी याद है. By the way, your video has become still. We can hear you, but your video is still. We cannot actually watch you speaking. आप ठीक है. वो नेटवर्क का चक्कर होगा. कहीं कहीं आता है, एग्जैक्ट। कहीं नहीं आता. सो ये अच्छा ओवरऑल ये जिस इंडस्ट्री में, बिकॉज आप पंप इंडस्ट्री में हम मिले थे, क्वाइट चैलेंजिंग टाइम्स. आई रिमेम्बर द डेज ऑफ जब नॉर्थ गुजरात में हालत ये थी कि घुसने नहीं देंगे. From that time to getting all the markets right, and it's all you guys, you and Jimmy and everybody. That was a very good experience. Then I moved to Rajasthan for the same company as consultant. So, how overall you find the industry? Because you from pump you changed to power tools, and then you are again into motors and all that. So somehow you are amongst the shaft and the motors. Anything to do with shaft and a motor. I think you are करेक्ट। still continuing with that.
सो ओवरऑल एग्जैक्ट ये इंडस्ट्री में ऐसा क्या लगा जो 7-8-10 साल से 10-12 साल से इसी में टिके हुए हो? एक्चुअली इसमें जो मेरा मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ, इसमें हो सकता है मैं कई और जो और मुझसे एक्सपीरियंस या सिमिलर काइंड ऑफ है वो मुझसे सर डिनाई करें मेरे ओपिनियन में। बट मेरा ये मानना है कि जैसे सर आप टेलीकॉम से बिलोंग करते थे पहले, जो आपने अपना परिचय या आपने बताई थी, तो जो मैंने ये जो पाया कि जो पंप इंडस्ट्री टोटली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, या और ये जो जिस इंडस्ट्री को, और आप ये देखिए कि एग्रीकल्चर जो है इंडिया में 60 to 70% आपने कंट्रीब्यूट करता है एग्रीकल्चर इंडियन इकोनॉमी में, और वो अभी भी कहीं ना करते कहीं अभी भी करता है, और किसी ना किसी वे में कनेक्टेड है आपकी डे टू डे बेसिस पे लाइफ में। हैं। तो मैंने ये देखा कि अगर इसको अगर 3-4 इंडस्ट्री को अगर बांटे, एक टेलीकॉम हो गया, एक ऑटोमोबाइल हो गया, एक एफएमसीजी हो गया, और एक एफएमईजी हो गया जो नया टर्म है आज का, एफएमईजी अच्छा, हो गया, और एक हो गया अपना एग्रीकल्चर बेस्ड मशीनरी बोल सकते हैं इसको। या तो मैं जब इसको एज अ 5, अगर मैं इसको रेटिंग करता हूं तो मैं अपने इस इंडस्ट्री को 5वें नंबर पे पाता था। आज से 10 साल पुरानी बात कर रहा हूं, हालांकि अभी भी हम 5वें नंबर पे हैं, बट वो आज परसेंटेज ऑफ इंप्रूवमेंट ज्यादा है। तो देखा कि टेलीकॉम इज डूइंग गुड, ऑटोमोबाइल इज डूइंग गुड, इन आई एम टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर, है ना, ओके, मतलब जो सारी चीजें। तो मैंने देखा कि इंडियन इकोनॉमी में अभी भी जिस तरीके से किसान को जो है थोड़ा सा डिमोरलाइज करा जाता है हर हर पैरामीटर पे, चाहे वो लोन हो चाहे कुछ भी हो, फैसिलिटी हो, तो देखा कि ये इंडस्ट्री भी उसी तरीके से चल रही है। तो यहाँ पे अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर इतने ज्यादा थे, और चूंकि आप इसको ये भी कह सकते हैं कि लोग अनएजुकेटेड हैं इस लाइन में, इन अनएजुकेटेड इन टर्म्स ऑफ लैक ऑफ नॉलेज बोल रहा हूं मैं एजुकेशन को यहाँ पे 10th 12th और ग्रेजुएशन से नहीं आकर रहा हूं मैं। आई अंडरस्टैंड इट इज नॉट लिटरेसी, इट इज एजुकेशन। ओके, इट इज एजुकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन वॉट एवर दे आर यूजिंग द इक्विपमेंट्स इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। तो बरोबर। वहां पे लोगों को इन टर्म्स ऑफ अगर देखा जाए तो, जैसे आपने राइटली उस साइड के गुजरात में एंटर करना, वो भी मशीनरी और पंप्स के लाइन में, जो कि वहां का जन्मदाता है। तो मैंने तो फ्रंट लाइन पे ऐसे ऐसे शब्द सुनी है, वो शायद मैं तो यहाँ रिपीट भी नहीं कर सकता हूँ। और नहीं, वो तो मैंने सुने, आपने मुझे सुनाए हाँ, थे उस तो जमाने में। हाँ, तो मैं यही कहूंगा सर कि इस सेगमेंट में काफी स्पेस था इम्प्रूव होने का, और ये इंडियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूटर है बहुत बड़ा। तो हर हमने एज अ हेवल्स, इसको जब हम हेवल्स में जब आया तो फिर मैंने अपने एक्सपीरियंस, क्योंकि हेवल्स ने ही मुझे हायर करा, तो इस वजह से करा कि भाई आप आपके इंडस्ट्री के थोड़े समझदार आदमी हो, तो आप हमको इस इंडस्ट्री में जगह बना के दीजिए। तो जब धीमे धीमे चूंकि हमने उनको बताया ये इंडस्ट्री इस तरीके से मूव करती है, और फिर मैंने भी अपने डिसीजन लिया, नहीं यार, क्योंकि जब मैंने एज हेवल्स ज्वाइन करा था, कहाँ जा रहे हो तुम, वो तो कंपनी बनाती भी नहीं है हम, बहुत सारे इश्यूज आए, लोगों ने सजेशन दिया। तो इस इंडस्ट्री में रहने का डिसीजन ये था कि यहाँ पे लर्निंग काफी थी, सीखने को काफी था, और यहाँ स्पेस काफी था इंप्रूवमेंट का इस इंडस्ट्री में, क्योंकि टेलीकॉम इंडस्ट्री तो बहुत शार्प हो चुकी है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत शार्प हो चुकी है, वहां पे इंप्रूवमेंट ऑफ एरियाज बहुत कम बचे हुए हैं, हर पूरा काम सिस्टम से होता है, वहां के डीलर, कस्टमर, रिटेलर, हर आदमी इक्विप्ड है, हर एक जो कंपनी के चैनल्स बने हुए हैं। लेकिन यहाँ पे तो हम आज भी, हम आप लिटरली वोंट बिलीव, हम आज भी डीलरों से वर्चुअल पेमेंट्स, और उनको अपने पोर्टल से ऑर्डरिंग और रिप्लेसमेंट्स, ये प्रोसेस हम आज सिखा रहे हैं, जो कि आपका टेलीकॉम का डिस्ट्रीब्यूटर आज से 5 साल या 10 साल पहले सीख के बैठा हुआ है। यस, तो टेलीकॉम, एफएमसीजी, ड्यूरेबल्स, एवरीबॉडी। या हाँ, एवरीबॉडी आई एम जस्ट टेकिंग ओनली वन एग्जांपल जस्ट कंपेयर टू ऑल दी थिंग्स। तो ये एक अंतर है इंडस्ट्री में, आज भी यहाँ स्पेस है काम करने का। और जो प्लेयर है, अगर मैं बात करूं, जैसे अगर मैं टेलीकॉम की बात करूं तो आज का जाइंट जियो है, अगर ऑटोमोबाइल की बात करूं तो मारुति है और टाटाज हैं। लेकिन आज मैं अगर पंप इंडस्ट्री की बात करूं तो गिनती के प्लेयर हैं, और वो भी कहने को तो नेशनल ब्रांड्स हैं, लेकिन आज आज की डेट में उनका भी इंफ्रा नेशनल लेवल का नहीं है। अगर या आज मैं बात करूं तो वो स्पेस आज दूसरी जो वेल रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड हैं, जो हेवल्स है, जो हेवल्स ने चीजें जो सीखी हैं हम लोगों से, जो हम लोगों ने बताया, मेरे जैसे और भी कंपनी में ऑल इंडिया में अलग अलग जगह पे लोग हैं, उन्होंने बताया, तो यहाँ हम लोगों की लर्निंग उनको समझ में आई, तो उन्होंने उस चीज को आगे इंप्लीमेंट करा। तो दैट वाज द मेन रीजन कि अगर हमें कुछ सीखना है तो भाई यहाँ काफी स्पेस है, और फिर हमें अपनी ग्रोथ भी अगर करनी है तो साथ में अगर हम इस चीज को भी ग्रोथ पे लेके जाते हैं तो ऑल टुगेदर, अगर कंपनी ग्रो करेगी तो डेफिनेटली हर व्यक्ति उसमें, चाहे डीलर हो चाहे एम्प्लॉय हो, हर व्यक्ति ग्रो करता है। तो दैट वाज द मेन रीजन
मैं यहाँ पे स्टेगनेंट हूँ इस इंडस्ट्री में, और यहाँ स्पेस अभी भी इम्प्रूवमेंट का काफी है इंडस्ट्री में, जो हम डे टू डे बेसिस पे करते हैं। एक चीज जब अपन ने ऑब्जर्व करी थी, आई मीन दैट टाइम बिकॉज आई वाज बोर्न इन द कंसल्टेंट मोड, आप तो यू आर द फ्रंटलाइनर आई सेल्स पर्सन, दैट दिस इंडस्ट्री अगेन follows essentially the dealer model. That is number one. Number two, you are very correct कि पूरा जैसे ऑल इंडिया नेटवर्किंग होती है ना, फॉर एग्जांपल जैसे एफएमसीजी की नेटवर्किंग रिगार्डलेस ऑफ द प्रोडक्ट, चलिए ड्यूरेबल्स पे आ जाते हैं, वी कैन मैच दैट, एलजी है, सैमसंग है, यहाँ तक कि वी गार्ड जैसी कंपनी जो कंपैरेटिवली पुरानी है बट इन दिस एरिना एज ए न्यू कमर, एक जो Sure. ऑल इंडिया सेटअप होता है, ये जिस समय मुझे याद है कि शायद शक्ति का तो आप छोड़िए, हो तो जो भी था, इवन किर्लोस्कर, इवन ग्रैंडफॉस, इन सब का भी मतलब ये जो जिसको कहते हैं ना कि बिकमिंग समथिंग विच इज सर्व सुलभ चीज होना, तो अपने वो मेन सेगमेंट की शहर में भी है और रूरल एरियाज में भी है, सर्विस पॉइंट्स भी हैं, ये है वो है, इस नेटवर्किंग में कोई सुधार हुआ है या अभी वही हाल? एक्चुअली ये जो एग्रीकल्चर एंड ऑल टुगेदर, सपोज इफ आई टॉक अबाउट पंप इंडस्ट्री इज टोटली बेस्ड ऑन after sales service, just like white goods industry, because Yeah. every serviceable item cannot sell without after sales support, Yes. चाहे वो कोई सा भी ब्रांड हो। तो आज भी अगर मैं देखूं तो अगर उस टाइम पे 50%, अगर मैं इफ आई मेजर इन 100 पॉइंट्स, देन वो 50 था उस टाइम पे, आज से 10 साल पहले। हम आज 80-85 तक आए हैं, बट अभी भी स्टिल 15-20% का इम्प्रूवमेंट अभी भी बाकी है, चाहे वो कोई भी प्लेयर हो। बिकॉज क्योंकि ये चीज डिपेंड होती है आपके पॉलिसीज पे, और आपके जो फ्रंट पे जो फ्रेंचाइजीज और जो आपका सर्विस सिस्टम काम करता है, तो वो आपको यहाँ लेके आता है। और फिर उसके बाद आपका नेटवर्क किस लेवल का है, किस आपके समझदार लोग हैं, क्योंकि समझदार आदमी हर सिस्टम को फॉलो करता है, लेकिन जो सिस्टम नहीं समझता है तो वहां कंपनी का फॉल्ट बाद में आता है, पहले सिस्टम को हमें समझना पड़ता है। क्योंकि आज एज अ कंज्यूमर हम आज भी वो फेस करते हैं, कस्टमर बोलता है मैं तो कंप्लेन नहीं डालूंगा, मैं तो ये नहीं करूंगा, जबकि ये चीज अगर आप अगर देखें टेलीकॉम में कोई ये बोल नहीं सकता। तो ये आज भी ये चीज चल रही है, और उस पर डे बाई डे टू डे बेसिस पे इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं। I think this is the education which the customer needs to be I mean, educated about. Maybe that is the biggest part, क्योंकि ये प्रॉब्लम होती थी, वो एक टिपिकल, खास तौर पे जो रूरल कस्टमर है, सबमर्सिबल का इसका अपना आई मीन 6 inches and above, not the 4 inches people. करेक्ट करेक्ट। एक चीज और भी क्या कहते हैं जो मुझे जो समझ में आई, आई थिंक ब्रांड लाइक हैवेल्स नाउ, पहली चीज तो अमित जी कि अभी भी वही हाल है जो राजकोट की और कोयम्बटूर की प्रॉब्लम हम फेस करते थे, ये आज भी है या कुछ ऑर्गेनाइज सेक्टर स्ट्रांग हुआ है इनके कंपैरिजन? नहीं सर, देखो इसमें अगर मैं बताऊं तो ब्रांड का जो सोच है, ये अगर अगर मैं बात करूं सर्विस और सेल्स और ब्रांड रिकॉग्निशन और कन्वर्जन टू ब्रांड, अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा जो चेंज अगर आया है तो वो मतलब जो पर्सन जो एंड कस्टमर है, लोकल टू ब्रांड में आया है आज की डेट में। आज अगर अपन देखें तो अगर एग्रीकल्चर मार्केट की बात करें तो टोटली अगर बात करूं तो पहले 50-50 का रेशो था, बट आज वो रेशो 80-20 का ही बचा है। मतलब अगर एग्रीकल्चर में लोग अगर देखें तो एवरी गुड फार्मर और मतलब जिसको सक्षम किसान बोलते हैं, वो ब्रांड पे ही जाता है। तो ये थोड़ा सा कन्वर्जन हुआ है। इंफॉर्मेशन जैसे जैसे चीजें लोग प्रोडक्ट और चीजों को लेके लिटरेट हुए हैं, तो लोगों ने ब्रांड को ही प्रेफर करा है। Okay, so when that the hard work which you have been putting in the market वो वक्त वो थोड़ा काम आया, और खास तौर पे जैसे मध्य प्रदेश में है, अभी आप लेट्स नॉट नेम द कंपनी, कुछ लोगों को लगता है ये मध्य प्रदेश तो उनकी, जिससे हम आप दोनों एसोसिएटेड रह चुके हैं एक जमाने पे, कि ये तो हमारी प्राइवेट फील्डम है, हमको यहाँ कौन चैलेंज कर सकता है। गुजरात अगेन आई थिंक इट वन ऑफ द टफेस्ट मार्केट, टफेस्ट एवर मार्केट जो हम लोगों ने फेस किया था। सो आज की तारीख में ये लोकल प्लेयर जिनका एक लोकल सेटअप है, हाउ यू आर फाइटिंग विद देम? इसमें सर देखो, मैं एक बहुत सिंपल मेरा ऑब्जर्वेशन है कि कोई भी चीज मतलब अगर कंटिन्यूस आज की डेट में, मतलब अगर देखें, अगर कोई भी कंपनी अपने आप को एज पर कस्टमर डिमांड और मार्केट की डिमांड के हिसाब से अगर वो अपने आप को अपडेट नहीं करता है, तो वो कोई सा भी ब्रांड हो मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाएगा। और इसके अपने पास बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल है। जस्ट सबसे बड़ा एग्जाम्पल अपने पास नोकिया है, मोटरोला है।
बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो कास्ट मार्केट के हिसाब से अगर नहीं चले अपने आप को अपडेट करके तो मार्केट से आउट हो गए। तो इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन कंपनी की जो पॉलिसीज हैं, कंपनी के जो कस्टमर क्या डिमांड कर रहा है, कस्टमर किस रेंज, क्या फैसिलिटी, क्या सर्विसेज, क्या प्रोडक्ट मांग रहा है। तो जो कंपनी ने उस चीज को अगर पकड़ के चला है और डे टू डे बेसिस पे उस चीज को अपडेट, अपने आप को अपडेट करा है, तो वही कंपनी आज की डेट में सक्सेसफुल है। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि जैसे अगर एक कहावत है ना, चेंज प्रकृति का जो नियम चेंज है, तो जिसने वो अडॉप्ट करा है अपने आप को समय समय पे चेंज करना, वो ही आदमी सर्वाइवल है, चाहे वो एम्प्लॉय हो, चाहे वो एज अ ऑर्गेनाइजेशन हो। अच्छा हमें देख, जो हमारे स्टूडेंट्स कुछ फ्यू ऑफ ज्वाइन, उनके मतलब की एक बात आपसे पूछता हूँ कि आफ्टर डूइंग योर एमबीए एंड आफ्टर filing such an for more than a decade in this very competitive environment, कौन-कौन सी skills हैं which you actually had picked up or on the way? I mean hardcore मार्केट की जो रिटेल की skills, इसमें पहले यूं कह लें जिनकी जरूरत पड़ी आपको and you बिल्कुल actually had बिल्कुल to. मैं तो पहले मार्केट से पहले की बताऊंगा आपको, मार्केट में तो बाद में आएंगे हम। सबसे पहले एक जो माइंडसेट होता है कि आप अगर ये सोचते हो, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं कि मैं छोटे शहर से आया, मैं तो शायद एमबीए करने के टाइम पे ही बीच में ही भागने का मन बना लिया था। तो वहां से अगर मैं आपको बताऊं कि चीजें वहां से चालू होती हैं, क्योंकि जब आप स्टार्ट करते हो और आपको जब क्लासेस में बताया जाता है कि चीजें यहाँ हैं, ये जो केस स्टडी हम पढ़ते हैं, किसी की हम स्टोरी पढ़ते हैं, बायोग्राफी पढ़ते हैं, तो एक एक माइंड में कहीं ना कहीं एक इमेजिनेशन आता है कि भाई हम जब आगे प्रोफेशनल वर्ल्ड में जाएंगे तो हम क्या जो आज सुन रहे हैं वो प्रैक्टिकल फेस भी करेंगे। तो सबसे पहले तो जो मैं करंट स्टूडेंट्स को बोलना चाहूंगा कि पहले, आज 10 साल पुरानी बात करूं तो लोग शायद आज की डेट में चैलेंज लेने से डरते हैं। तो सबसे बड़ा जो है फियर टू चैलेंज, मतलब आप जो है चैलेंज लेने से तो डरो ही मत, क्योंकि एक जो ह्यूमन टेंडेंसी है, जो अपने दिमाग है ना सर, जो आपकी इमेज दिमाग में क्रिएट होती है ना, वही आप एग्जीक्यूट कर पाते हो। और जो आप सोचते नहीं हो दिमाग में, वो कभी हो नहीं पाता है। तो मैं आज की जनरेशन को यही बात बोलूंगा कि आप किसी भी चीज को अगर करने का सोचोगे तो ही कर पाओगे, और दिमाग से डर को तो आप निकाल ही दो, क्योंकि डरने से तो चीज कोई होती नहीं, डर से आपका सिर्फ काम ही बिगड़ता है और दूसरा कुछ होता नहीं है। तो तो सबसे पहले समराइज करें तो पॉजिटिव एटीट्यूड और एंड टेक द फियर बाय हॉर्न्स, डरने का नहीं है, करेक्ट सीधे उसका सामना करना, फेस योर फियर्स. करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ओके लेट्स सी प्लीज, व्हाट विल हैपन। लेट अस सी व्हाट क्या. आप या नेक्स्ट. तो फेल हो गए या तो फिर सीखोगे उससे कुछ। ओके, ये तो ये तो हुआ ये ज्वाइन ये तो करने एक से पॉइंट हो पहले. गया। हाँ हाँ. हाँ, दूसरा दूसरा ये है कि आप जो आज के टाइम की डिमांड है, क्योंकि मैं अगर देखूं, मैंने जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करा, लोग एक ही पोजीशन पे 10 साल, 15 साल, 20 साल निकाल देते हैं। तो आज के टाइम का जो सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज है, वो तो आप चैलेंज लेके एंटर हो गए, अब आपको सरवाइव भी करना है वहां पे। तो आपको अपने आप को अपडेट रखना है और आपको 360 डिग्री पे काम करना पड़ेगा। आपको डिजिटल भी होना पड़ेगा, आपको हर पैरामीटर पे खरा भी उतरना पड़ेगा। आज अगर आप सोचो कि मुझे अगर ये नहीं आता है, तो वो आपको रियलाइज होना चाहिए और वो सीखना चाहिए आपको। आप ये सोचे नहीं ये मेरी प्रोफाइल में नहीं आता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप एक सेल्स की प्रोफाइल में नहीं आता, मैं तो मानता हूँ। ट्रू. कीप अपडेट योरसेल्फ। कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ, एब्सोल्युटली. ये बात तो बिल्कुल सही, बिकॉज बीइंग द फर्स्ट लाइन ऑफ इंटरेक्शन, सर्विस का इशू हो, पेमेंट का इशू, एनी इशू, योर कस्टमर द फर्स्ट, आई मीन वट एवर द फर्स्ट कम्युनिकेशन हैपेंस, वो फ्रंट लाइन से ही होता है. तो आपका जो फ्रंट लाइनर है और उसके ऊपर जो उसका लाइन मैनेजर, आप अगर ये सोचो सर ये मेरा काम नहीं है, ये सर्विस का काम है, ये इसका काम है, ये उसका काम है, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, काम नहीं चलने वाला. Okay, what about the basic hardcore skills as far as sales and retail is concerned? और तीसरा पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट मैंने समराइज करा, तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि आपने ये सब करने के बाद आपके दिमाग में भी एक विजन होना चाहिए कि सपोज अगर आज कोई है, आपको कहाँ जाना है, क्या करना है। इफ यू हैव डिसाइडेड टू डू जॉब, तो आपको जॉब में कहाँ तक जाना है। आपने बिजनेस का सेटअप लिया है, क्योंकि शायद मैं तो नहीं मानता हर स्टूडेंट सोचता होगा मुझे जॉब करनी है, कोई बिजनेस भी करते होंगे। जैसे मैं अगर बात करूं तो मेरी पूरी फैमिली जो है बिजनेस से बिलोंग करती है। तो अगर इफ यू आर प्लानिंग टू डू बिजनेस, तो बिजनेस में भी आपको गोल और एम सेट करना पड़ेगा, विजन रखना पड़ेगा, क्या करना है, कैसे करना है। वही आप एमबीए में सब कुछ सीखते हो।
तो आप यू शुड बी विजन एंड गोल ओरिएंटेड, देन ओनली, जो मैंने आपसे पहला पॉइंट बोला था कि आपको एक बेंचमार्क तो सेट करना ही पड़ेगा, देन आप फिर चैलेंज लो, देन आप उसको अपडेट करो, फिर आप डे टू डे बेसिस पे उससे आप फाइट करो, तभी आप उस चीज से ओवरकम करके और विनिंग मोड में आगे बढ़ पाओगे। तो ये तीसरा पॉइंट ये है। तो ये इस पे चीज मैंने आपको तीसरा पॉइंट भी समराइज किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर कि आज की जनरेशन में, हालांकि मैं भी यंग ही हूँ, अभी कोई मैं ज्यादा वो नहीं हो गया तो ये मेरे मेरे लिए तो बहुत प्रैक्टिकल, यंग हो अभी। हाँ, मेरे प्रैक्टिकल अनुभव हैं जो हम, इवन मैं अपनी टीम को भी यही बताता हूँ कि भाई आप आपको अपडेट करो, क्योंकि आफ्टर ऑल वी आर वर्किंग इन अ प्राइवेट सेक्टर, और दिस काइंड ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन करंट सिनेरियो इट्स वेरी प्रोफेशनल। तो आपको यू शुड बी इक्विप्ड विद ऑल इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, जो भी आपसे मांगा जा रहा है वो आपको करना है, वो करके देना है, यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ अदर चॉइस। अच्छा, ये तो हो गए द मेंटल हाउ यू शुड प्रिपेयर। नाउ द थिंग इज बिकॉज वी आर ए स्किल यूनिवर्सिटी, हमारे यहाँ क्या है कि 30% वी गो फॉर थ्योरी एंड 70% हम प्रैक्टिकल या स्किल स्पार्क करते हैं। नाउ एनी टिपिकल रिटेल स्पेसिफिक या अपनी ओवरऑल, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन हो, चाहे वो डीसीआर हो, चाहे वो क्लेम फाइल करना हो, चाहे वो एमआईएस हो, एनी अदर स्किल्स विच यू एक्चुअली, आप जैसे लगता है कि अगर ये हमें दे दी गई होती एमबीए में के टाइम पे, सिवाय थ्योरी में पढ़ाने का सेल्स और मार्केटिंग में, तो शायद ये जर्नी थोड़ी सी आसान हो जाती। वुड यू लाइक टू शेयर सम ऑफ दीस पॉइंट विद आवर स्टूडेंट्स, जो ये कम से कम इस बात का ध्यान रखें? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें सबसे पहले तो इसमें जो हमारे करंट की जो मतलब बात करूं, जैसे पेमेंट की आज डिजिटल चीजें हो गई हैं सारी चीजें, तो आज से अगर मैं बात करूं तो एक टाइम पे, आज से 10 साल भी कोई ज्यादा दूर नहीं है, 10 से 15 साल पहले भी कंप्यूटर को एक हवा बना के चलाते थे लोग कि भाई कंप्यूटर है, कंप्यूटर है। इवन मैं सच बात करूं तो मैं, टू बी वेरी फ्रैंक, मेरे कई लोग तो ऐसे भी थे बैच में जिनने कंप्यूटर ही पहली बार देखा था। तो मेरा यहाँ पे एक लाइन में आपको बोलना चाहूंगा कि हमें जो किताबों की डेफिनेशन रटाई गई 10 से 12 साल या 15 साल पहले, उसके बजाय हमको किसी चीज का प्रैक्टिकल नॉलेज दिया गया होता कि आज जैसे कॉलेजेस आज लैपटॉप फ्री बांटते हैं या कुछ भी, ये अगर चीजें शुरू से ही अगर ऐसी इक्विप्ड हो गई होती, क्योंकि आज मैं मानता हूं कि आज भी मेरे खुद के कलीग और जितने भी जिनको भी मैं जानता हूं या शुरू की बात करूं, तो आज भी लोग उतने स्किल्ड नहीं है उस चीज में। तो मेरा ये मानना है कि अगर किताबी नॉलेज के अलावा सच काइंड ऑफ स्किल अगर हमको प्रोवाइड करी गई होती, और आज प्रोवाइड हो रही हैं, और इसको और अगर फोकस करा, जैसे आपने बताया आपकी यूनिवर्सिटी स्किल्ड यूनिवर्सिटी है, तो हमें थोड़े से ये गैजेट्स वगैरह या टेक्निकल नॉलेज वगैरह होता है, जो सारी चीजें अदर देन सेल्स की बात कर रहा हूं मैं इसको, क्योंकि सेल्स के अंतर्गत ही सारी चीजें, मतलब इंक्लूडेड ऑल द पार्ट्स, जो आपने डीसीआर इन सब बताया, क्योंकि कंपनी आज एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज लॉन्चिंग स्मार्ट एप्स, just you need to check in your presence and need to put order from portal and all। तो अभी लोग कंपनी को वो ट्रेनिंग देनी पड़ती है, जो कि शायद इफ यू आर यूजिंग अ स्मार्टफोन, इफ यू कैन ऑपरेट जूम, देन व्हाई यू आर नॉट एबल टू ऑपरेट योर कंपनी पोर्टल। तो ये एक लैक ऑफ नॉलेज है जो उस समय नहीं दिया गया। तो अगर रादर देन एक थ्योरी और डेफिनेशन और किताबी ज्ञान के साथ अगर ये प्रोवाइड 50% पे कराया जाए, तो किताबी ज्ञान तो इन सब चीजों से आदमी अपने आप सीख ही लेता है, डजंट मैटर। ट्रू, बिकॉज हमारे यहाँ यही पे व्हेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट सम सर्टिफिकेट कोर्सेज, तो हमने ध्यान क्या रखा है, एक तो एक्सेल इज अ मस्ट। एक्सेल का बेसिक आपको नॉलेज चाहिए चाहिए, उसके अलावा ईआरपी का बेसिक नॉलेज चाहिए चाहिए, और जोहो करेक्ट। या सेल्स फोर्स चलाना आना ही चाहिए। उसके अलावा तुम्हारी रिपोर्टिंग कैसे होती है, तुम्हारा एसकेयू की पेंडिंग कैसे होती है, डेली कॉल रिपोर्ट कैसे बनेगी, हाउ यू आर गोइंग टू मॉनिटर योर फीट ऑन स्ट्रीट एंड ऑल दैट इज सारा actually I am trying to include in these courses, and obviously it will be imparted to our MBA and a few BBA students to as and when the time comes. So करेक्ट yes, करेक्ट। we are trying to do it. So बिकॉज thus, बिकॉज इफ आई से जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे हम किसी कैंडिडेचर को सेलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो जो हमारा पैनलिस्ट होता है, एक पैनलिस्ट एचआर का भी होता है उसमें, तो हमारे बेसिक क्वेश्चंस ये होते हैं भाई कि हम परसेंटेज पे फोकस ज्यादा नहीं करते हैं। परसेंटेज ठीक है, आदमी का कुछ भी हो सकता है ना, बट हम भी जो आपने पॉइंट बताया उसका अगर वो एक्सपीरियंस्ड है, तो भाई आपका एक्सेल का नॉलेज क्या है, एमएस ऑफिस का नॉलेज क्या है, आपका ईआरपी आप चलाते हो, पुरानी कंपनी में रहा तो क्या वर्जन को शॉर्ट कमांड बात कर ली उससे, क्योंकि अगर आप जानते हो तो आपसे कोई बेसिक क्वेश्चन पूछेगा तो जवाब देने 2 मिनट का भी समय आपको नहीं लगेगा।
तो ये आज की डेट में आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माय कंपनी, बट आई एम टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरी ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो उनके सिलेक्शन क्राइटेरिया में ये चीजें आ गई हैं। तो ये जो मैंने आपको तीसरे पॉइंट में बात रखी थी कि आज की जनरेशन को इक्विप्ड होना पड़ेगा, सिर्फ एक किताबी ज्ञान से आज काम नहीं चल रहा है, आपको अदर प्रैक्टिकल और ऑपरेशनल पार्ट पे भी आपको इक्विप्ड करना पड़ेगा। और व्हाट्सएप इंस्टाग्राम से ऊपर उठना पड़ेगा, बिल्कुल, सोशल मीडिया से राइटली, आगे है, आईटी राइटली बहुत सर। आगे है। You have summarized in quite in few words. It was fantastic speaking to you, Amit. Thanks for sparing your time from your busy Oh, schedule. my pleasure, sir, my pleasure. And we will be calling Anytime. you again, maybe for some discussions and all that. And Sure, sure. more people will be joining us. So thanks a lot, and hope to have many more sessions. And nice to see you after. Thank And you so wish much. all Same the here. best to you and your family. And God bless you. That's all I can say as your ex-colleague. Thank you so much. Same to you, sir. Okay, take care, dear. Okay. Okay. Thank you. Thank you. Just a minute. Just a minute. Any questions, please? Sorry. I was too quick to. Any questions from the audience, please? Anybody? Any questions you ask to Mr. Jain? Please raise your hand. We have a little reduced audience, I told you before, because exams are over and we are actually preparing for a new batch to come in. And as per the guidelines of UGC, the new batches will start with 1st October only. The existing groups have gone through the internship. Thoda sa aaj jara attendance comes. But next time, definitely there will be a lot of questions too. Because abhi jo students they are actually not hardcore into retail, e-commerce and sales and distribution and merchandising. But next time, maybe we will get something better. So thanks a lot again, Amit. And thank you so much. My pleasure. Thank you so much. Okay, dear. Thank you. Bye-bye. Okay.